और खबरें तफसील से। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग का वाकया पेश आया है। अलग सुबह 4:35 पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। क्विक रिस्पांस टीम हरकत में आ गई है। इलाके का मुहासरा कर लिया गया है और तलाशी मुहिम जारी है। एसएसपी भटिंडा ने कहा कि यह दहशतगर्द हमला नहीं है, घबराने या खौफ व हिरास में मुब्तला होने की बात नहीं है। मौके पर टीम में मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। ਬਠਿੰਡਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਨੀਤ ਖੁਰਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੀ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਨ ਡੈਪਥ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। दूसरा सर ये भी है कि गोली चलाने वाला शख्स कौन सीगा इससे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वी आर नॉट क्लियर येट, अजे आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई बंदे दी जी, ठीक है ना जी। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਫਰਦਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੀਲਡ ਬਾਈ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਲਰਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਰਮੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕਾਰਡਨਡ ਏਰੀਆ। ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 4 ਵਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਅਲਰਟ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ जी। सर एक सवाल हो रहा है, गोली जिसने चलाई जिस शख्स ने, की ये सिविल वर्दी च सीगा, सिविल कपड़े सीगा या वर्दी सी या आर्मी दे विचों ही सीगा? कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸੈਸ ਅਲਾਉ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। जम्मू कश्मीर में जराइम की शरह काफ़ी बढ़ गई है। आए रोज़ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिनसे इंसानियत शर्मसार हो रही है। खूनी रिश्तों का पास लिहाज भी नहीं रखा जा रहा है। ज़िला सांबा में भी एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। पहाड़ी इलाके डाकी गांव में एक संदिल बाप ने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। बाप ने तेज़ धार हथियार से अपने बेटे को कत्ल कर दिया है। मुलजिम ने अपनी बेटी और बीवी को भी जख्मी कर दिया। जख्मियों को इलाज और मुआवजे के लिए मकामी पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल किया है। पुलिस ने श्रीनगर में एक नए सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। छनापुरा केस की तहकीकात के नतीजे में नौगाम इलाके में जिस्म फरोशी के एक और रैकेट का पर्दाफाश हुआ। चार्लीपुरा नौगाम के शब्बीर मीर, उसकी बीवी शाजी अमीर और शौरा के आदिल गुलजार को इस रैकेट को चलाने के लिए मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। 2 कस्टमर और एक सेक्स वर्कर को भी हिरासत में लिया गया है। ये तमाम मकामी हैं। श्रीनगर पुलिस ने चंद रोज कबल बाग मेहताब इलाके में भी एक रैकेट का पर्दाफाश किया था। नौजवानों के दिल और दिमाग में
फिट और साफ सुथरी कौम का एहसास और जज्बा पैदा करने की गर्ज से श्रीनगर में आज एक और इवेंट का इनेकाद किया गया। इस जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए ओल्ड एयरफील्ड मिलिट्री श्रीनगर में एक मिनी मैराथन वॉकथॉन एंड ब्लॉकथॉन का इनेकाद किया गया है। खासी तादाद में लोगों, मकामी नौजवानों के साथ साथ तलबा और ख़वातीन ने भी इसमें शिरकत की। इस तकरीब के एक हिस्से के तौर पर मिलिट्री आलात की नुमाइश की गई है। अपनी फौज को जानने के लिए इस नुमाइश का अहतमाम किया गया है। हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल भी कायम किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा दुकानदारों की जानिब से ये स्टॉल कायम किए गए हैं। फौजी आलात और साजो सामान को देखकर तलबा ने काफ़ी खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इससे नौजवानों में फ़ौज में शामिल होने का जज्बा पैदा हो जाता है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए ब्रिगेडियर तरुण निरोला ने कहा कि फ़ौज मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है ताकि आम लोगों को फ़ौज के मज़ीद करीब लाया जा सके। रेस के बाद हमने जब यहाँ पे इक्विपमेंट्स देखे तो मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। इससे पहले हमने एक बार टीवी में देखा था, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास खान है। आज हम इस रनिंग में पार्टिसिपेशन किया। यह रनिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इंसान इसमें पार्टिसिपेशन करेगा इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसमें पहले इसकी फिटनेस अच्छी होती है। दूसरी ये बुरी चीज़ जो है उससे दूर रह सकता है। ड्रग्स वग्स जैसे कि आज के जो बहुत बच्चे हैं ड्रग्स में हो रहे हैं इन्वॉल्व। हमारे साथ ब्रिगेडियर तरुण नरोला जी मौजूद है क्योंकि आज ओल्ड एयरफील्ड पे इवेंट हुआ। काफी सारे बच्चों ने शिरकत की और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वेपन्स डिस्प्ले हो रहा है, ये बेसिकली बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किया जा रहा है। मजीद बात करने के लिए मौजूद है ब्रिगेडियर साहब। सर, पहले आपका शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, मुझे बताइए मेन एम क्या है? दौड़ लगाई बच्चों ने, मकसद क्या है उस दौड़ का, और अब ये जो वेपन डिस्प्ले है इसका क्या मकसद है? आज आपने देखा सुबह सुबह हमने प्लॉगेथॉन कराया, मैराथन कराया। प्लॉगेथॉन में प्लास्टिक उठाने का एक मुहिम किया क्योंकि यहाँ G20 हो रहा है। हम एक मैसेज दे रहे हैं इंडियन आर्मी की तरफ से कि श्रीनगर को साफ करो, क्लीन रखो और दुनिया को दिखाओ कि कितना अच्छा है। इस इनिशिएटिव के साथ हमने ये किया था। आने के बाद बच्चों से हमने ट्रीज लगवाए और उन्होंने ट्री प्लांट किए। उसके बाद हमने यहाँ पे इक्विपमेंट डिस्प्ले किया है। जितने 5 स्कूल्स हैं, मर्लिन स्कूल, जाफर शरीफ स्कूल, केवी, एयरफोर्स स्कूल और गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल रावलपुरा, इन सब के बच्चों को इक्विपमेंट दिखा रहे हैं कि क्या है इंडियन आर्मी के पास क्या है, और इनको एक मोटिवेशन दे रहे हैं ताकि ये इंडियन आर्मी या अच्छी जॉब आगे पढ़ाई करके ज्वाइन कर सके। सर, बिल्कुल आपने कहा कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ताकि उनको लगे इंडियन आर्मी से वो मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, ताकि वो भी इंडियन आर्मी जो है। थोड़ा सा आप बता सकते हैं इन थोड़ा बहुत मशीनरी के बारे में, किस तरह से वेपन्स काम करते हैं या किस में ये यूज होते हैं? मैं इतना आपको बता सकता हूं कि जो हथियार हैं ये एक मिक्स और कॉम्पोजिट अलग अलग किस्म के हथियार हैं। बताने में बहुत समय लग जाएगा, पर इतना बता सकता हूं हर एक का अलग अलग रोल है, हर एक का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है। इतना मैं आपको अभी बता सकता हूं, बाकी जब बच्चे जाएंगे इसको ग्राउंड पे देख सकते हैं। सर, बिल्कुल लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्या मैसेज आप देंगे पूरे कश्मीर के जो यूथ है या ऑल ओवर जो इंडिया की यूथ है उनके लिए क्या मैसेज होगी? क्योंकि बहुत सारे यूथ अभी बुरी आदत है यानी ड्रग्स या और कोई बैड हैबिट उसमें मुलव्वस है, तो आपकी क्या मैसेज है? अभी आप जब हम बात भी कर रहे थे आपने सुना होगा पीछे बच्चे चिल्ला रहे थे कि ड्रग फ्री, और एमसी भी उनसे निवेदन कर रहे थे कि ड्रग फ्री का प्लेज लेंगे। तो यहाँ बच्चों को हमने ड्रग फ्री का प्लेज दिलाया है और ग्रीन इनिशिएटिव का प्लेज दिलाया है। मेरा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, हम यहाँ पे बहुत सारे इवेंट कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो अभी हम इंडिया के फ्लैग्स भी लगा रहे हैं बडगांव डिस्ट्रिक्ट में, और परसों एक कंप्यूटर का कोर्स करा रहे हैं बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, पहलगांव और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के। तो हमारा इन सभी से रिक्वेस्ट है, ड्रग्स को ना लें,
अपने अर्थ को साफ रखें और ट्रीज को प्लांट करें। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे ब्रिगेडियर तरुण नरोला जी, वो इस इवेंट के बारे में जानकारी दे रहे थे। थोड़ा सा जैसे हम आपको डिस्प्ले का बता रहे थे, ये बच्चे देखिए, थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम फिरोज आपको जूम करके दिखाएगा किस तरह से जो ये बच्चे हैं एंजॉय कर रहे हैं इन इक्विपमेंट्स को, क्योंकि इन्होंने आज फिल्मों में या दूर से देखा होगा, लेकिन आज बहुत करीब से ये इक्विपमेंट्स देख रहे हैं। जैसे कि ब्रिगेडियर तरुण नरोला जी बोल रहे थे, बच्चों को बेसिकली मोटिवेट करना है कि इंडियन आर्मी किस कदर आगे है, ताकि ये बच्चे आगे जाके सोचे। इंडियन आर्मी भी उनके लिए एक फ्यूचर है, एक करियर है, ताकि ये बच्चे मोटिवेट हो जाए और आगे जाके इंडियन आर्मी को अपने करियर के बतौर वो इसको ऑप्ट करे। आप देखिए ये बच्चे किस तरह से, फिरोज आपको दिखाएगा, ये बच्चे हाथ में ये हथियार लिए हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये इनके जो मैगजीन है वो निकाले गए हैं, सेफ्टी भरपूर रखी जा रही है, खाली इनको दिखाया जा रहा है, ये हाथों से महसूस कर रहे हैं किस तरह के जो हथियार है हमारी इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। फिरोजवानी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 बड़गाम। और हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। JKLS लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर बराए ज़राअत व फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने लेह के 3 रोजा दौरे के दौरान तंगती जैसे बॉर्डर गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ बॉर्डर इलाकों के लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। सरहदी इलाकों में हो रही तामीर और तरक्की के बारे में भी बातचीत हुई। मरकजी वजीर को जानकारी दी गई कि अब दूर दराज इलाकों में भी लोगों को मरकजी हुकूमत की स्कीमों का फायदा हासिल हो रहा है। कुछ वफूद ने अपने इलाकों के मसाइल भी उजागर किए। उन्हें मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई गई। लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट जमियांग सेरिंग नामग्याल भी वजीर के हमरा मौजूद थे। कई दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मरकजी वजीर ने अपने दौरे की तफसीलात फराहम की। लेके 3 दिवसीय दौरे पर आए केंद्र के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ईस्टर्न लद्दाख के दोंगती विलेज में आए और उनके लोगों के ग्रीवेंसेस सुने, और इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं केंद्र के कृषि मंत्री। सर, जो आज आपका विजिट रहा है उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। मैं बॉर्डर विलेज दुमती के कार्यक्रम में आया था। वहाँ भी सभी ग्रामवासियों से बातचीत हुई और मुझे जानकर प्रसन्नता है कि लोग कितनी भी सरकार की आलोचना करें, लेकिन पीने का स्वच्छ पानी देश के पहले गांव बॉर्डर विलेज तक पहुंच गया है। रसोई गैस का सिलेंडर आम गरीब आदमी को मिल गया है। बॉर्डर विलेज में भी बिजली की रोशनी गरीब के घर में है। हम लोग उनके साथ बैठे भी, सभी अधिकारी थे, उनकी कुछ समस्याओं को भी सुना, उनकी जो उपलब्धियां हैं उसको भी जाना। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और विशेष रूप से लद्दाख यूटी बना, उसके बाद तो उनमें उत्साह देखते ही बनता है। यहाँ पर जो विकास के काम हो रहे हैं, जो आत्मनिर्भरता उन लोगों के मन में खड़ी हुई है, उसकी चमक एकदम बॉर्डर विलेज के गांव में भी निश्चित रूप से दिखाई दे रही थी। मैं आज उन सब लोगों से मिलने आया हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ लोगों का जीवन कृषि पर और पशुपालन पर आधारित है। यहाँ के पश्मीना को जियो टैग मिल गया है। इसके लिए मैं इस क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और खेती भी उन्नत खेती में परिवर्तित हो, पशुपालन भी बढ़े, इस बात के सारे प्रबंध भारत सरकार की योजनाओं के साथ मिलकर, राज्य के साथ मिलकर हम लोग करेंगे और उनके जीवन में
और खुशहाली आए, ये सुनिश्चित करेंगे। तो सर अभी साथ ही साथ में आपने कुंगती गांव में भी लोगों से पूछा था कि केंद्र सरकार की कितने स्कीम यहाँ पर है, और यहाँ पर नियमा भी पूछा था कितने स्कीम यहाँ पर पहुंचे? नहीं, यहाँ PM किसान है, आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला योजना है, जल जीवन मिशन है, सौभाग्य योजना की बिजली है, केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। तो कमोबेश लगभग सब योजनाओं का लाभ यहाँ तक पहुँच रहा है। यह प्रसन्नता की बात है। आमतौर पर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं, गांव में 15 रुपये भी नहीं पहुंचते। लेकिन आज PM किसान का जब हम 6,000 रुपया भेजते हैं तो 6 का 6,000 रुपया व्यक्ति के अकाउंट में पहुंचता है। आज बहुत खुशी है कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र में कैबिनेट के मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। इसलिए मुझे बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर वेबरेंट विलेज अभी तक हमें बहुत दिक्कत था, क्योंकि अभी जैसे हाल ही में मोदी जी ने 4,800 करोड़ का बजट दिया, तो वेवरेन विलेज का कोई अच्छा सा एक्टिविटी हो रहा है, और डेवलपमेंटल एक्टिविटी भी यहाँ पे अच्छा होने का मुझे पूरा उम्मीद है कि पहले हमें इतना वो नहीं हो रहा है। जैसे हमें लद्दाख में यूटी मिलने के बाद चंगतांग रीजन में अभी अच्छा डेवलप हो रहा है, और फिलहाल हमें सिर्फ वो इसमें इतना इशू ज़्यादा नहीं है। पहले बॉर्डर का हमें बहुत इशू होते थे, अभी इतना नहीं है, क्योंकि बॉर्डर में भी डेवलपमेंट एक्टिविटी काफ़ी हुआ है। जैसे डेमचौक जैसे ज़ीरो बॉर्डर पे हमें काफ़ी 2 साल में डेवलप का एक्टिविटी देखने को मिला है। आज तो हम बहुत खुश है कि हमारा कंस्टिट्यूंसी का जितना भी पब्लिक है सब खुश है कि आज से पहले यहाँ कोई कैबिनेट रैंक का तो छोड़ो, और कोई हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी आना मुश्किल हो जाता है। अब हम तो बहुत खुश समझता हूँ कि बहुत दिल्ली से वहाँ से यहाँ से कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर यहाँ भेजे हैं। तो इसमें हमारे जो मसले हैं, एक तो हमारा ये फूडर का मसला है, उसमें ये चारागाह का मसला है, उसमें भी उन्होंने बहुत ये अच्छा कुछ प्रोजेक्ट करके सब पब्लिक को कुछ फ़ायदा आने का कुछ उन्होंने बोला था। अब इसी तरह एग्रीकल्चर के बारे में है, एग्रीकल्चर के बारे में भी कुछ ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, ग्रीन हाउस वगैरह हैं, वो सब उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ सब्सिडी देकर पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए, उन्होंने ये बात कहा है। तो हमें ये उम्मीद है कि हमारे सांसद भी आज साथ हैं, तो लोकल बॉडीज़ के ये काउंसलर साहब भी हैं, इसी तरह EC है, DC साहब है, सभी में ऑफिसर साहबान और मिनिस्टर से लेकर सबको मैं हमारा ये तो उम्मीद है कि बहुत अब हमें कुछ तरक्की होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा काम होते रहे। ड्रोन की दरअंदाजी का मामला हिंदुस्तान के लिए एक चैलेंज है और वो इस मसले से निपटने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की इन नापाक कोशिशों को नाकाम भी बना रही है। उधर ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की नुमाइंदा रोचरा कंबोज ने उठाया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अपने खिताब के दौरान पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने बेनकाब किया। रोचरा कंबोज ने तमाम ममालिक पर जोर दिया कि वो ड्रोन के जरिए गैर कानूनी हथियारों की सरहद अबूर करने की कोशिश की मजम्मत करें। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को ऐसे रवैये की मजम्मत करनी चाहिए। Volume and quantity of the small arms acquired by terrorist organizations remind us time and time again that they cannot exist without the sponsorship or support of states. In our context, we are facing a serious challenge of cross-border supply of illicit weapons using drones, which cannot be possible without active support from the authorities in control of those territories. The international community should condemn such behavior and hold such states accountable for their misdeeds. और पटन में कायम ट्रामा अस्पताल में डॉक्टरों और दीगर सहूलियात के फुकदान को लेकर पटन ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर नासिर बशीर शाह ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पटन अस्पताल को ट्रामा अस्पताल का नाम कहकर लोगों को धोखा दिया गया, बल्कि सरकारी कागजात में ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के नाम से दर्ज है। नासिर बशीर शाह ने मजीद कहा कि इस अस्पताल में डॉक्टरों की किल्लत पाई जा रही है, जिसकी वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात पेश आ रहे हैं। हॉस्पिटल है पटन में, जो कि 19
70 को आया है। इसमें अगर हम नजर डालते हैं कि इसमें नो क्रिएशन है और इसमें जो पोस्ट्स होने चाहिए वो भी आज तक नहीं हुए हैं। ओवरफ्लो इतना है हमारे इस हॉस्पिटल में कि उसकी हम बात नहीं कह सकते। जैसा कि यस्टरडे हमारी सफीना बेग जी ने, चेयरपर्सन जो है हमारी डीडीसी की, उन्होंने विजिट किया हमारे हॉस्पिटल में और उन्होंने बहुत तारीफें की हमारे हॉस्पिटल की। तो बहुत दुख की बात है कि ये लोग असलियत पर पर्दा डाल रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और पिछले 50 सालों से आज तक भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है। हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, ऑर्थो नहीं है, ENT नहीं है, हमारे पास डर्मो नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियो नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस नौजवानों को मनशियात से दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। इस सिलसिले में कुपवाड़ा जिले में पुलिस ने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स प्रोग्रामों का इनेकाद किया, जिसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। SSP कुपवाड़ा युगल मिन्हास ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि नौजवानों को मनशियात से दूर रखना असल मकसद है ताकि एक बेहतर समाज की तामीर हो सके। इस मौके पर नौजवानों ने पुलिस के इस इक़दाम की सराहना करते हुए कहा कि मुस्तक़बिल में भी इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद होना चाहिए। की हमेशा पहल रहती है कि वो नौजवानों के साथ जुड़ के कुछ एक्टिविटीज़ करें कि एक तो जो मेन स्ट्रीम जो हमारी है उसमें और एक इजाफा होता रहे, अच्छे एलिमेंट्स आते रहें और साथ में हम एक साथ दोनों फिरके जो हैं वो मिलकर आगे चलें और इस समाज को और बेहतर बनाएं। नशा जो हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी तेज़ रफ्तारी से फैलता जा रहा है, उससे भी नौजवानों को दूर रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाता है ताकि नौजवान जो है अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में अपनी डेवलपमेंट के लिए लगाएं। कुपवाड़ा के जो नौजवान है वो काफ़ी खुश हैं कुपवाड़ा पुलिस के इस तरह के टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। वक्त में वक्त खेल कूद की सरगर्मी में धकेलने की कोशिश, क्या मुस्तकबिल में इस तरह के मजीद टूर्नामेंट ताकि जो नौजवान है वो इस खेल कूद में राग़िब? जी देखिए, पिछले हफ्ते भी हमने इंडोर की कुछ गेम्स कराई जिसमें हायर सेकेंडरी लेवल तक के बच्चे जो ज़्यादातर इन्वॉल्व थे। आज आपने देखा कि जो यूथ है हमारा एक्चुअल जो 18+ वाले लोग यहाँ पे खेल रहे थे। इस तरीके के आगे भी जैसे लास्ट ईयर हमने फुटबॉल के भी कुछ इवेंट्स करवाए, कुछ वॉलीबॉल के करवाए या कोई और जो कम्पिटिटिव इवेंट्स होते हैं जिसमें डिबेट या सिंपोजियम वगैरह करवाया जाता है, उस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो साल भर चलती रही। ये टूर्नामेंट अच्छा किया पुलिस वालों ने, एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये जो नौजवान है इनको हिस्सा लेना चाहिए इसमें। ये ड्रग्स वगैरह छोड़ के, मेरे हिसाब से स्पोर्ट से बड़ा कोई और नशा है ही नहीं, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो जिस तरह लड़के जो है मनशियात में जाते हैं तो उन्हें एज ए खिलाड़ी आपकी क्या अपील रहेगी? तो उसमें ज़िंदगी ख़राब भी होती है उन चीज़ों से, उसमें कोई फ़ायदा नहीं। स्पोर्ट्स में आके सेहत भी ठीक रहती है, अच्छा उसको भी है। अब